Students, in this lecture, we are going to discuss managerial response to changes in business environment. We all know that business environment keeps on changing rapidly. Sometime in social environment, sometime in legal forces, legal environment, sometime government, customers, sometime technological environment. That is always ever changing, that keeps on changing all the time. These environmental forces these environmental forces force the managers to innovate new ideas, to work on new strategy, and to make their plans with a new vision. That's why the topic is managerial response to changes in business environment. After 1991, when liberalization, privatization and globalization process initiated by the Indian government, that put its impact not only on Indian economy but on the world economy, that opened the door for MNCs, foreign companies and investors into Indian market. Indian businessmen, industrialists and managers especially, initially they faced lot of problems in the form of challenges and threats. Challenges और threat क्या था देखिए, फॉरेन कंपनी जब भी इंडिया में आएगी तो नेचुरली इंडियन कंपनीज का जो मार्केट शेयर होगा वो श्रिंक होगा, डाउन होगा, क्योंकि मार्केट में टोटल प्रोडक्ट तो उतने ही सेल होंगे, थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम जितना पहले सेल कर रहे थे अब क्या उतना सेल कर पाएंगे? ये चैलेंज होता है इंडियन कंपनी के लिए और रहा है. एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी कैसी? अपॉर्चुनिटी फॉर दोज मैनेजर्स who accepted this challenge. They worked hard and they built their brand. They worked on technology. Using their visionary mind, they provided that product which not only demanded in India but abroad also. It is an opportunity. यानी अभी तक देखिए इंडियन मार्केट में जो इंडियन इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, अगर हमारे देश में फॉरेन कंपनीज आई हैं तो इंडियन कंपनीज के लिए भी तो डोर ओपन हुए हैं फॉरेन मार्केट के, अब्रॉड के. इट वाज द डिफरेंस, बट इट वाज फॉर दोज मैनेजर्स हु वर्कड हार्ड, हु वर एबल टू foresee the effects of that changing business environment. Now let's discuss the managerial responses. Managerial responses mean managers ने कैसे response किया business environment के changes को, and how should they respond at the same time. The first point we have, that is diversification. Students, you must know what is diversification. Diversification is entering into the different field and introducing the new product. Take the company example of Tata company, Reliance company. They are not only in one field, but slowly and gradually they are entering into different field also. चाहे वो petrochemicals हो, चाहे वो electronics हो, चाहे वो steel हो, चाहे वो communication हो, हर field में ये companies enter कर रही हैं. This is diversification. What is the benefit of diversification? You can capture larger share in the market. And one more benefit is brand building. आपके कंपनी का नाम इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है, आपकी गुडविल बनती है मार्केट में. एट द सेम टाइम ये भी होता है कि एक फील्ड में अगर आपका मार्केट शेयर कम हो रहा हो, उसे आप कवर अप कर सकते हो बाय एंटरिंग इनटू द अनदर फील्ड. इससे एज ए होल आपकी कंपनी का जो साइज होता है वो एक्सपेंड होता है.
and your company is termed as multinational company with different products, with multi products. तो मैनेजर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा चेंजिंग एनवायरनमेंट में? डाइवर्सिफिकेशन, कि अपनी कंपनी को जो अभी तक एक प्रोडक्ट बनाती थी दूसरा प्रोडक्ट बनाने लगी, तीसरे फील्ड में एंटर कर गई, फोर्थ फील्ड में एंटर कर गई। इस तरह से कंपनी ने अपना एक्सपेंशन और ग्रोथ को इंश्योर किया और अपने जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं, मार्केट शेयर है, उसको इंक्रीज किया। सेकंड पॉइंट देखिएगा, जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्या है देखिए, व्हेन अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज एक्सप्लॉइटेड बाय 2 और मोर कंपनीज। अब जॉइंट वेंचर की जरूरत कैसे पड़ गई? अब देखिए, कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आएगी, फॉर एग्जाम्पल दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी but they don't have knowledge of Indian market, they don't have infrastructure, they don't have the workforce, so that required the emergence of joint venture and collaborations. For example, फोर्ड कंपनी को इंडिया में एंटर करना था तो उसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा। जनरल मोटर को इंडिया में एंटर करना था तो उसने कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर किसके साथ किया? हिंदुस्तान मोटर्स, जो एक इंडियन कंपनी है। इसके बेनिफिट क्या हुए देखिए, वी गॉट, यानी आवर कंपनी जो इंडियन कंपनी है उनको एक बेटर टेक्नोलॉजी मिली, इंप्रूव्ड विजन मिला, और उस कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ? दे गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स एंड मार्केट नॉलेज। और दोनों मिलकर कंपनी जब काम करती हैं तो वो कस्टमर के लिए एक बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अकेली एमएनसी किसी दूसरे कंट्री में जाकर डायरेक्टली बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, तो दैट रिक्वायर्ड फॉर जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशंस। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज मिलके बिजनेस करने लगी हैं डिफरेंट कंट्रीज की। और ये किसकी वजह से हुआ? दैट इज ड्यू टू द इंटेलेक्ट ऑफ मैनेजर्स। जो मैनेजर्स की विजन थी कि अकेले एक बिजनेस करना मुश्किल है डिफरेंट कंट्रीज में, इसलिए जॉइंट वेंचर कीजिए, एग्रीमेंट्स कीजिए, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना जरूरी है, सही है। थर्ड पॉइंट देखिए, ब्रांड बिल्डिंग। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम दिस इज द एज ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स व्हाट? नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी का और उसके प्रोडक्ट का नाम अच्छा है मार्केट में, उसी की ब्रांड बिल्डिंग है। एंड दीज डेज यू कैन सी, ब्रांड वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। कई प्रोडक्ट देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1+ की सीरीज, 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, 1+6, 1+7, ये मोबाइल फोन सिर्फ ऑनलाइन बिकता है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द कॉलेज स्टूडेंट्स, कि उसका मार्केट शेयर कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज से ज़्यादा है। ब्रांड बिल्डिंग, LG, सैमसंग, टाटा, रिलायंस, दीज कंपनीज इन्वेस्ट ह्यूज फंड्स ऑन ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार ब्रांड पॉपुलर हो गया, ब्रांड बिल्ड हो गया, तो वही उनको लॉन्ग रन में सर्वाइवल भी इंश्योर करेगा, प्रॉफिट भी देगा और मार्केट शेयर भी देगा। तो मैनेजर्स ऑल्सो वर्क हार्ड इन दिस एरिया। फोर्थ पॉइंट देखिए, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज ट्रेडिंग, इट इज मैन्युफैक्चरिंग, it is telecommunication, it is electronics और different other fields are there। हर किसी में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स में तो देखिए आप, once you buy a product, next time, even just after 6 months or a year, you want to have new model with latest features। इसलिए जो मैनेजर्स हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू every time their focus is on improving the technology in order to improve the quality and feature of their product, ताकि कस्टमर को बेनिफिट मिले, कस्टमर जो अमाउंट स्पेंड करता है उसके बदले उनको वर्थ मिले, वैल्यू मिले। improved compensation level, the changing environment no doubt provided threats and challenges, at the same time opportunities also। the skilled workers, managers and other associated people
their compensation level have increased. I mean to say, जो बिजनेस एनवायरनमेंट 1991 से पहले सैलरी पैकेजेस मिलते थे मैनेजर्स को, इंजीनियर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, स्किल्ड वर्कर्स को, वो कई गुना बढ़ गए. द मैनेजर्स हु आर रियली क्वालिफाइड, हु आर प्रोफेशनल्स, द वर्कर्स हु आर स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स, द इंजीनियर्स हु आर गुड, दे गेट वेरी गुड पैकेजेस. यानी उनका कॉम्पनसेशन लेवल भी इंक्रीज हो चुका है, उनको सैलरीज कंपैरेटिवली स्टार्टिंग सैलरी ही अच्छी मिलती है. दिस इज ड्यू टू changing business environment. This is due to privatization. This is due to globalization. And next one is customer focus. Earlier, the focus of the company was on just manufacturing product. Any product बना दो and it will find its own market itself. Any product अपने आप बिक जाएगा. Before 1991, but after LPG introduced, liberalization, privatization and globalization, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ यानी पूरा वर्ल्ड एक मार्केट, एक इकोनॉमी बना, कस्टमर्स हैव चॉइस. इफ दे डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट दे गेट अनदर प्रोडक्ट, एंड दिस रिक्वायर्स मैनेजर्स अटेंशन टुवर्ड्स कस्टमर. नाउ देयर फोकस इज इन प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट which is really demanded and required by the customer, liked by the customers. यानी before you produce the product, आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले कस्टमर से पूछना होगा, through your research, through your inquiry, through your market survey, कि कस्टमर को चाहिए क्या, and accordingly you have to design the product, you have to add qualities and features into it, then your product will be sold in the market. This is customer focus. यानी दिस इज द एज ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन. आप सिर्फ अपने आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, यू हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. सो दिस वाज मैनेजरियल responses to changes in business environment. And remember one thing, students, before 1991 managers task was simple, as once the plan was made it was carried on for a long period, because goods were simple, products were simple, and customer, there was no focus on the customer. Customer was also leading their simple life. They used to accept whatever is available in the market. After 1991, managers' task has become more complicated. Now every time they have to use their intellect, they need to be visionary, they have to look into the future in order to understand what changes are taking place in the environment. And using their intellect, they have to scan, understand and analyze the environment, and accordingly initiate action to ensure survival of their business enterprise.